मारूफ टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को आज अदालत पेश किया गया। अदालत पेशी के दौरान मुलजिम की जानिब से ना तो कोई वकील पेश हुआ, ना मुलजिम की फैमिली अदालत पेश हुई। आइए इसकी फैमिली से राब्ता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उमर हयात की जो फैमिली है, खासतौर पर उसके जो वालिद साहब है, वो इस केस की पैरवी क्यों नहीं कर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद साहब गल कर रहे हैं। जी सर। अच्छा अमजद साहब, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ? मैं 18 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ। 18 ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾਲਤ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ 18 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮਰ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ 14 ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਆਪਣੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਅਕਸਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਕਰਾਇਆ ਅਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ? 18 ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 14 ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 18 ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਉਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ 18 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 16 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ? ਵਕੀਲ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਵਕੀਲ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਸ਼ੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये उमर हयात जिसने मारूफ टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का जो है जिस पे इल्ज़ाम लगा कत्ल का, जिसको जायब कुआ से वहाँ से भागते हुए भी देखा गया, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसको पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में गिरफ़्तार किया, बल्कि ना सिर्फ गिरफ़्तार किया
बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको पहले ट्रैक किया गया, इसको ट्रेस किया गया, फिर इसको जड़ावाला के इलाके से गिरफ्तार किया गया, फिर इससे मोबाइल भी बताया गया कि बरामद किया गया, जो मोबाइल ये वारदात के बाद वहाँ उस घर से लेके फरार हुआ था, और उसके बाद बताया जा रहा था कि शायद इससे जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है आईजी इस्लामाबाद साहब ने बाकायदा एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम तर जो पहलू थे उससे बातचीत की थी, और उसके बाद गालिबन इसका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उस पे इसको पुलिस की हिरासत में दिया गया था। आज गालिबन उस रिमांड के मुकम्मल होने पे इसको दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया गया, और मज़ीद जो है तहकीकात के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए मज़ीद मेरा ख्याल है 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है इसका मंजूर हुआ है। और आज जब इसको अदालत पेश किया गया तो उसकी जो है मनाज़िर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं, और बताया जा रहा है कि अदालत में जज साहब के सामने इसने दरख्वास्त की कि एक तो मेरा मेडिकल करवाया जाए, दूसरा जब इससे वकील के हवाले से पूछा गया तो इसने कहा कि मेरे अपनी फैमिली से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, मेरी फैमिली जानती है कि वकील करवाना है या नहीं करवाना। और इसकी फैमिली से भी जो हमारे ज़राए गए थे बातचीत करने, तो इसकी फैमिली भी ये बात कर रही थी कि हमारा अपने बेटे से अभी तक कोई रब्ता नहीं हो सका, और हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने ये वारदात कर ली है। और उन्होंने कहा कि जब ये वारदात हुई हमें भी बतौर इंसान इसकी तकलीफ़ और कर्ब महसूस हुआ, और फिर अगले दिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो हमें तब पता लगा कि हमारा बेटा वहाँ पे जय-वक़ुआ पे मौजूद था और वो ये वारदात करके वहाँ से भागा। उन्होंने कहा बहरहाल वारदात की जगह से भागते हुए या वहाँ से निकलते हुए तो वीडियो है। चूँकि वो फैमिली है, फैमिली जो है वो अपने बेटे का इस तरह से जो है फौरी तौर पे कबूल भी नहीं कर पा रही थी कि उसने इतनी घिनौनी वारदात डाल दी, तो वो बार-बार कह रहे थे कि हमें अंदर की कोई वीडियो दिखा दें, या इस वारदात से पहले की कोई वीडियो दिखा दें, या हमारे एक बार अपने बेटे से बात करवा दें कि हम उससे कम से कम पूछ लें कि वहाँ पे हुआ क्या, तुमने क्यों मार दिया? तो मैं जैसे अभी भी उनसे पूछा था कि इस पे कोई पहले कोई मुकदमा था, तो उन्होंने बताया इस पे पहले कोई भी मुकदमा नहीं था, और जिस रोज़ ये वारदात हुई उससे 1 रोज़ कबल वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ही था, हम घर पे मौजूद थे। और मैंने पूछा कि इसके पास असला कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा हमारे पूरे ख़ानदान में किसी के पास असला नहीं है। मैंने पूछा कि उसके पास गाड़ी फॉर्च्यूनर कहाँ से आई, या वो फॉर्च्यूनर कैसे रेंट पे करवा के ले गया? तो उन्होंने बताया कि हमें ये भी नहीं पता क्योंकि हमारी उससे अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई। हमारी मुलाकात होगी तो हम उससे पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे किया, क्यों किया? ये हालात इस डगर पे कैसे पहुँचे? तुमने असला कहाँ से लिया? तुमने फॉर्च्यूनर कहाँ से लिया? और चूँकि अभी बाप का अपने बेटे से राब्ता ही नहीं हो पा रहा, इस वजह से वहाँ पे आज इनके शायद इनका केस प्रेज़ेंट करने के लिए वहाँ पे कोई जो है लॉयर भी मौजूद नहीं थे, और शायद इनके वालिद को ये बताया गया था कि उसको 18 को जो है अदालत पेश किया जाएगा, तो बता रहे हैं कि हम 18 का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो अदालत पेश हुआ तो हम इस वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। दूसरा, हमने जड़ांवाला इनकी फैमिली के पास अपने कुछ ज़राए को भिजवाया, अपनी कुछ टीम्स भिजवाई और इनसे बातचीत की, और जब मेरी अपनी खुद भी इनसे बातचीत हुई तो हमने जो उमर हयात था इस पे खुद भी कुछ तहकीक की, कुछ इसके हवाले से कि ये किस तरह का लड़का था, किस तरह से ब्रॉट अप हुआ, क्या किस तरह से इसकी तरबियत की गई, ज़हनी लिहाज से इसकी क्या मतलब कि हालत थी, या ये क्या किस तरह का इसका रवैया था अपने इलाके में। तो हमें पता लगा कि जो ये उमर हयात था, इसकी तकरीबन 22 के साल उम्र थी, और जिस तरह एक सोशल मीडिया का आपको एक किरदार नज़र आता है जो कुछ भी करके सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहता है, ये इसी तरह ये भी सोशल मीडिया पे मौजूद भी था और कोशिश करता था कि जैसे सोशल मीडिया की एक लाइफ होती है उसको रियल लाइफ में भी मेंटेन कर सके। मैंने जो इसके जो करीबी ज़राए, इसके फैमिली ज़राए और इनकी गली में मौजूद बहुत से अहबाब से जो बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि एक तो बड़ा रूड था, बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं था, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिला नहीं करता था, और बन ठन के रहा करता था, मतलब कि जो अपने कपड़ों का बड़ा ख्याल रखा करता था और हेडफोन लगा के गली में फिरा करता था। कुछ मखसूस लोगों के साथ इसकी बैठक थी, लेकिन हर शख्स के साथ ये जो है मेल मुलाकात नहीं रखता था। और उसके हवाले से हमने मज़ीद पता करवाया तो हमें पता लगा कि उमर हयात का जो भाई था, बड़ा भाई गालिबन, वो भी कुछ अर्सा पहले बताया जा रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी शायद खुद ख़त्म की थी किसी ख़तून के चक्कर में। वल्लाह आलम उसकी क्या कहानी थी। और उसके जो है इंतकाल के बाद इसकी वालिदा कुछ अरसे बाद इंतकाल कर जाती हैं, और अब जो उमर हयात और इनके वालिद अमजद साहब जो हैं वो उस घर में अकेले रहते थे, बल्कि देखा जाए तो उमर हयात ही उस घर में अकेला रहता था। इसके वालिद जो है फैसलाबाद जॉब करते थे, वीकेंड्स पे वापस आया करते थे, और तब जो है एक आध दिन जो है उमर हयात के साथ गुजारा करते थे, और इसके वालिद की जो भी पेंशन आ रही थी या जो भी वो अर्न करते थे, वो जो है कुछ वो अपनी ज़िंदगी में लगाया करते थे, जो अपने मामलात हैं वो उसमें लगाया करते थे, और कुछ जो है उसका पोर्शन उमर हयात को मिलता था। बाकी इनकी 2 बहनें थीं जो कि दोनों जो है वो वहीं करीब ही जो है उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो उस तरह इस घर में उनका बहरहाल आना-जाना नहीं था। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थीं जो उमर हयात के हवाले से हमने अपने तौर पे पता करवाई, और अभी जो उनके वालिद साहब से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं जब तक उससे खुद नहीं मिल लेता,
तब तक मैं आपको मज़ीद कुछ जो है तफ़सीलात बताने से जो है वो गुरेज़ता हूँ, और जब मेरी मुलाकात होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको तमाम तर तफ़सीलात बताऊँगा कि मुझे उमर हयात ने क्या बताया, और वो इस जो है नहज तक या इस हरकत को क्या क्या किन हालात थे, उसने क्या उसकी ज़हनी कैफ़ियत थी, किस चीज़ ने उसको ट्रिगर किया कि उसने जाके ये इंतहाई कदम उठा लिया। बहरहाल जो भी मामलात होंगे हम उस हवाले से भी तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। जब ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ हमने वो भी रिपोर्ट किया, फिर उसके हवाले से जो भी तफ़सीलात आती रही हम आप तक रखते रहे। तो हमने बल्कि पहले भी उमर याद के वालिद का इंटरव्यू किया था। आज सोचा कि एक बार दोबारा पूछूँ कि आप अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? आपका वकील क्यों नहीं पेश हुआ? तो उन्होंने बात की कि हमें इस हवाले से पता ही कुछ नहीं था। तो बहरहाल ये तमाम तर तफ़सीलात थी। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।